Good morning, students. How are you? Myself Avik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So in this lecture we will solve different questions from the NCERT and for the chapter Matrix and Determinant, and this is the exercise 3.2. okay, so in the last lecture we had solved various questions from this 3.2 exercise, and we had discussed many more things regarding the transpose of the matrix and how could you multiply the two matrices and how could you get the values of a cube, a square, and the identity matrix, unit matrix, etc, etc. So here in this lecture we will solve some questions on that topic actually. So just write the first question, just write the today's first question, just write the first question. Simplify cos theta sin theta माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है. देन प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा. Okay, just you need to simplify this. Okay, so how can you simplify? So if you want to simplify this thing, then maximum we can multiply this cos theta with each and every elements of this first matrix, and this sin theta will be multiplied with each and every element of the second matrix. That is the only thing we can do. Okay, so that means अगर multiply करें cos square theta sin theta, नीचे cos theta sin theta, सामने एक माइनस and cos square theta. Okay, and then plus sin square theta minus cos theta sin theta, and sin theta cos theta, okay, and sin square theta. Now in the middle you can see add sign is there, plus sign is there. That means we have to add these two matrices. And how can I add the two matrices? Just add the elements, corresponding elements of these two matrices. So what are the corresponding elements? This cos square theta, sin square theta, that is addition between cos square theta plus sin square theta. Then this element and this element, I think if you add this answer is 0, right? Here cos theta minus cos theta, यहाँ पर माइनस भी है, माइनस cos theta sin theta, और यहाँ पर sin theta cos theta, दोनों के बीच ऐड होगा, आंसर 0, क्योंकि both will be cancelled. Cos square theta plus sin square theta, cos square theta plus sin square theta. So according to the trigonometrical identity formula, cos square theta plus sin square theta equals to 1. So here we are getting a unit matrix. We are getting an unit matrix with order 2 cross 2. That means 2 row and 2 column. That's why this matrix is 2 cross 2 matrix. Okay. So that means if you want to say what is the order of this matrix, the order is 2 cross 2, just like that. Okay, then next question लिखो, find x का वैल्यू निकालना है. that means x is one kind of matrix. Find x if y equals to, one matrix is given, 3 2 1 4, 3 2 1 4. Okay, and one equation is given, twice x plus y equals to 1 0 minus 3 2, 1 0 minus 3 2, right? Here actually it is the equation. Using this equation you need to find the value of x. Here value of x is means x is one kind of matrix, just you need to find the structure of x here. Okay, so twice x plus y equals to 1 0 minus 3 2.
तो 2 into x plus y means what? Y is given 3 2 1 4, okay, and equals to 1 0 minus 3 2. तो यहाँ पर तो मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो जिसका वैल्यू मुझे निकालना है ओनली दैट टर्म इज एप्लीकेबल टू स्टे इन द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट. ओके, so remember this thing, whatever the values actually is going to be found, that should be placed in the left hand side only, okay, not in the right hand side. So except that x related terms, all of these things should be actually should be there in the right hand side. This matrix should be placed in the right hand side, okay, because we need to find the value of x here. तो 1 0 minus 3 2, ये एक matrix already you have in the right hand side. Now if you take this matrix to the right hand side, then sign will be changed. I think 3 2 1 4. Okay, now subtraction between two matrices, just like your addition process. 1 minus 3, that is the first element will be minus 2. 0 minus 2, that is minus 2. Minus 3 minus 1, that is minus 4. 2 minus of minus 4, that is minus 2. ठीक है, तो ये है twice x का वैल्यू. तो सो twice x इक्वल्स टू minus 2 minus 2, ठीक है, फिर minus 4 and minus 2. Now we need to find the value of x. That means I think this 2 should be there in the right hand side, because we need to get the value of x. We don't need this 2 is there in the right hand side. So that means x equals to, ये हाफ जो है ना will be multiplied with each and every element. तो ये 2 के साथ हाफ मल्टीप्लाई होगा, आंसर कितना आएगा 1, सामने एक माइनस है. हाफ 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर 1, सामने एक माइनस है. हाफ 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2, सामने एक माइनस है. और हाफ 2 के साथ मल्टीप्लाई, दैट मीन्स ये है आपका आंसर, द वैल्यू ऑफ x. दैट मीन्स द मैट्रिक्स x इज फाउंड. ओके, ठीक है. देन एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13. ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी 3.2 एक्सरसाइज का, ठीक है. और बाकी जो प्रोसेस का क्वेश्चंस है ये हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी है. एनसीईआरटी यहां पर क्या दिया हुआ है, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू cos x, एक मैट्रिक्स गिवन है, cos x माइनस sin x 0, ओके, एंड देन sin x cos x 0, sin x cos x 0 0 0 1, okay, show that f of x into f of y, f of x plus y, ठीक है. ये प्रूफ करना है तुम्हें. सो दैट मीन्स इफ यू वांट टू गेट दिस प्रूफ, at first you need to find the value of f of y, because according to the question only fx is given. So without getting this f of y value, we cannot plot their values in the left hand side, because we need to prove left hand side and the right hand side answer should be same. So before getting the values, how can I get the answers here? So if you want to get the solutions, at first you need to find the value of f of y, and then the value should be placed here in the left hand side, and that means the next process, next steps will be continued. So here given fx equals to cos x minus sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1, it is your f of x. So if you want to find the value of f of y, just replace this x by y, f of y. तो क्या होगा, cos y minus sin y 0, sin y cos y 0 0 0 1, right.
These are the values of f of x and f of y. So f of x plus y क्या होगा, क्योंकि देखो राइट साइड में f of x plus y भी है, तो इसका वैल्यू भी तो निकाल के मतलब रखना है यहाँ पर, बिकॉज वी नीड टू मेक देम इक्वल. सो देखो, तो x के जगह क्या रिप्लेस होगा, x प्लस वाई. तो क्या होगा देखो, cos x, तो cos x के जगह x प्लस वाई माइनस साइन x, दैट मीन्स x के जगह x प्लस वाई, और जीरो तो है ही यहाँ पर. फिर साइन x प्लस वाई, देन cos x प्लस वाई, देन जीरो, देन 0 0 1. तो ये है होता है f of x plus y का वैल्यू. दैट मीन्स इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू matrices this, if you multiply these two matrices, then the answer should be equal to this according to the proof, according to the left hand side and right hand side terms. That should be proved. Now start from the left hand side. Left hand side start करो. So लेफ्ट हैंड साइड लो, शुरू करो लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई. लो मल्टीप्लाई करो. तो f ऑफ x क्या है तुम जानते हो, cos x माइनस साइन x, जीरो, साइन x cos x, जीरो 0 0 1. ये है f ऑफ x. f ऑफ y क्या है, cos y माइनस साइन वाई, जीरो, साइन वाई कॉस वाई, 0 0 0 1. अब ये दोनों मल्टीप्लाई अगर करेंगे, मल्टीप्लाई ये डायरेक्शन एंड देन ये डायरेक्शन, एल सिस्टम. तो cos x इंटू कॉस वाई, दैट इज cos x cos y माइनस साइन दिस, माइनस साइन x इंटू साइन वाई, 0 इंटू 0 दैट इज 0. ठीक है, दैट मीन्स यहां पर छोटा छोटा करके लिखो, जगह नहीं होगा. ठीक है, ये मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, दैट मीन्स दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस. फर्स्ट एलिमेंट मिला प्लस करके, प्लस 0 इंटू 0 0, लिखना जरूरत नहीं है. सेकंड एलिमेंट में आओ, दैट मीन्स यही रो बट सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा ये. तो cos x sin y, दैट मीन्स माइनस cos x sin y, देन माइनस sin x cos y, देन 0 इंटू 0, वही 0 आ रहा है. फिर नेक्स्ट क्या होगा, cos x इंटू 0 0, माइनस साइन x इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, बस हो गया. ये देखो फर्स्ट रो कंप्लीटेड. नाउ सेकंड रो कैलकुलेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स सेकंड रो को ही हम लोग काउंट में लेंगे. दैट मीन्स साइन एक्स और एल सिस्टम जाओ, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, देन कॉस एक्स साइन वाई, प्लस होगा कॉस एक्स साइन वाई, देन शायद 0 होगा, 0 इंटू 0 0. देन रो सेम ही रहेगा, सेकंड कॉलम में आओ, साइन एक्स इंटू साइन वाई, दैट इज माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, देन कॉस एक्स प्लस होगा कॉस एक्स कॉस वाई, 0 ही होगा. ठीक है, ठीक है. और 0 इंटू 0 0. फिर थर्ड में आओ, साइन एक्स इंटू 0 0, cos x इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, दैट मीन्स तीनों 0 0 0 प्लस करके ऐड करके आंसर 0 ही आएगा. नाउ नीचे क्या आएगा, 0 इंटू, ये अब थर्ड रो मतलब ये कंसिडर करना है, 0 इंटू दस 0, सब 0 को देखो, 0 इंटू कॉस वाई 0, 0 इंटू साइन वाई 0, 1 इंटू 0 0, दैट मीन्स 0 ही आ रहा है. ये भी देखो 0 ही आएगा, 0 इंटू दिस 0, 0 इंटू दिस 0, 1 इंटू 0 0, फिर 0 0 0 0 1. ठीक है, अब देखो, अब जो नया मैट्रिक्स बना, देखो यहां पर एक फॉर्मूला देखो, साइन
एक्स साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, फॉर्मूला पता है। जैसे ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, राइट। यहां पर देखो अगर मैं माइनस कॉमन लूं, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं, बीच में क्या आएगा प्लस। फॉर्मूला किसका बनता है, देखो तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी। सामने माइनस साइन है, जीरो तो इधर है। फिर ये देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। ये क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दैट मीन्स कॉस ए प्लस बी। ये जीरो, नीचे तो 0 0 1 ही है, तो ये किसके साथ इक्वल आ रहा है। देखो तो हम लोगों ने वैल्यू मतलब निकाल के रखा था यहाँ पर, वी ऑलरेडी हैड फाउंड दिस मैट्रिक्स वैल्यू, दैट मीन्स हाउ कैन यू एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एफ ऑफ x plus y according to the structure of the questions. This matrix can be expressed as f of x plus y. So it is the answer. Okay, ठीक है, प्रूफ आ गया। दैट मीन्स इट इज द राइट हैंड साइड। तो प्रूफ्ड, लेफ्ट हैंड साइड वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड वी हैव गॉट द राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। सो हियर यू हैव दिस प्रूफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करो, पॉज करके लिखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थोड़ा लेंथी भी होगा ये, ठीक है। लिखो इफ a इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन नंबर 18 है एनसीईआरटी का। इफ a इक्वल्स टू, a एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 -10 अल्फा बाई 2, then 10 alpha by 2 0 and I equals to unit matrix 2 cross 2 ऑर्डर का, that means 2 रो और 2 कॉलम। show that I plus A equals to I minus A into cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब नाउ इफ यू वांट टू प्रूफ दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू नीड टू नो द फॉर्मूलाज। जैसे कि cos 2x का फॉर्मूला हम लोग जानते थे, एक फॉर्मूला है 1 minus 10 square x by 1 plus 10 square x. So if you don't have this 2 here, then you need to choose by 2 everywhere. Okay, sin 2x formula 2 10x by 1 minus 10 square x. So if you don't have this 2, then by 2 should have been chosen. So the question is, why I am choosing this formula? Because cos 2x formula, there are many more formulas for cos 2x and sin 2x, but particularly why I am choosing these two formulas, because the whole question you can see 10 is there, everywhere this 10 related expressions are there, that's why you are choosing this formula, 10 related formulas. तो यहाँ पर देखो जो गिवन पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, i प्लस a, और I को क्या बोला गया था कि 2 क्रॉस 2 यूनिट मैट्रिक्स, जस्ट लाइक दैट, प्लस A मतलब क्या है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 0। अब दोनों को ऐड करेंगे, देखो तो आंसर कितना आ रहा है, 1 प्लस 0 दैट मीन्स 1, 0 दिस दैट मीन्स माइनस 10 अल्फा बाई 2, 0 प्लस दिस दैट मीन्स 10 अल्फा बाई 2, और इधर 1 प्लस 0 1। ये होता है I प्लस A का आंसर, ये लेफ्ट हैंड साइड का है। अब राइट हैंड साइड अगर शुरू करें, राइट हैंड साइड क्या है, I माइनस A, देन मैट्रिक्स cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, देन साइन अल्फा, देन cos अल्फा, ठीक है। अब I माइनस A भी सेम इसी तरह ही हम लोग निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो I माइनस A क्या होगा, I माइनस A थोड़ा यहाँ से निकाल लो ना, यहाँ आई माइनस है, बीच में माइनस साइन है, तो देख लो ना, अगर सोचो जस्ट
think in your mind, I minus a, that means in the middle minus n is there. So that means 1 minus 0, 1. 0 minus 10 alpha by 2, that means ये हो जाएगा minus 10 alpha by 2 और ये हो जाएगा 1. देखो तो ये है I minus a का आंसर. और ये जो नेक्स्ट पार्ट है, ये देखो cos alpha, using this formula can I write cos alpha 1 minus 10 square alpha by 2 by 1 plus 10 square alpha by 2 and 2 10 alpha by 1 plus 10 square alpha by 2. ठीक है, माइनस भी है एक सामने. और sin alpha cos alpha, that means 2 10 alpha by 1 plus 10 square alpha by 2, और इधर cos alpha है ना, 1 minus 10 square alpha by 2 by 1 plus 10 square alpha by 2. ठीक है, अब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो यहां पर देखो, दिस कैलकुलेशन सीम्स लाइक clumsy and very congested. No, just if you want to make it simple, then you can consider something as the term of 10 alpha by 2. You can replace 10 alpha by 2. Just whenever this expressions and the calculation will be simplified, then you can replace 10 alpha by 2 in that place, in the chosen variable place. Okay. So if you multiply these two, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर 10 अल्फा बाई 2 को है कुछ एज्यूम कर सकते हो, दैट इज p है, मतलब 10 अल्फा बाई 2 के जगह तुम p बिठा के पहले कैलकुलेशन करो, फिर उसके बाद वैल्यू रिप्लेस कर देंगे. तो यहां पर क्या होगा, 1p माइनस p 1, तो 1 माइनस p स्क्वायर 1 प्लस p स्क्वायर, ये बाई 2 माइनस 2p बाई 1 प्लस p स्क्वायर, 2p बाई 1 प्लस p स्क्वायर, 1 माइनस p स्क्वायर बाई 1 प्लस p स्क्वायर. लो, अब नाउ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, you know the process very well. How can you multiply the two matrices? Many more questions were already solved by using this multiplication. Okay, now multiply this, ठीक है, that means 1 into ये, p into ये. ठीक है, how multiply करो, 1 into this, that means 1 minus p square by 1 plus p square, बीच में प्लस साइन, p into this, that means 2p square by 1 plus p square, गया फर्स्ट एलिमेंट. अब this into this, 1 into this, that means minus 2p by 1 plus p square, then plus p into 1 minus p square by 1 plus p square. ठीक है, अब सेकंड रो आएंगे तो ये चूज करेंगे, that means minus p into 1 minus p square by 1 plus p square plus 2p by 1 plus p square, और दिस ये माइनस 2p square by 1 plus p square, then 1 into this, that means plus 1 minus p square by 1 plus p square. ठीक है, अब देखो हर जगह एलसीएम तो सेम ही है, 1 plus p square, ये भी सेम 1 plus p square, हर जगह देखो एलसीएम सेम ही आएगा, 1 प्लस पी स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर. लो, एलसीएम होगा तो यहाँ क्या होगा, 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर. यहाँ पर क्या होगा, माइनस 2p प्लस p माइनस p क्यूब. देखो p को मल्टीप्लाई करेंगे 1 और इधर, ठीक है, फिर माइनस p प्लस p क्यूब प्लस 2p, और इधर माइनस 2p स्क्वायर प्लस 1 माइनस p स्क्वायर. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, 1 माइनस p स्क्वायर
प्लस पी स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस पी स्क्वायर बाई 1 प्लस पी स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, माइनस पी क्यूब माइनस पी बाई 1 प्लस पी स्क्वायर। नीचे क्या होगा, पी क्यूब प्लस पी बाई 1 प्लस पी स्क्वायर। और इधर क्या होगा, माइनस पी, ये प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस होगा। सो यहाँ पर होगा 1 प्लस पी स्क्वायर बाई 1 प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या बनता है, ये कैंसिल, दैट इज 1। यहाँ पर भी देखो माइनस पी अगर मैं कॉमन लूँ, ब्रैकेट के अंदर रहेगा पी स्क्वायर प्लस 1, नीचे भी पी स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। यहाँ पर सेम p कॉमन आएगा, पी स्क्वायर प्लस 1, नीचे भी पी स्क्वायर प्लस 1, और इधर भी ये कैंसिल, दैट इज 1। तो यहाँ पर मैट्रिक्स क्या बन रहा है, देखो 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, दैट इज माइनस पी 1, दैट इज p के जगह माइनस 10 अल्फा बाई 2, यहाँ पर 10 अल्फा बाई 2 1 बिठा दो, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के साथ इक्वल है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड, ठीक है। मैट्रिसेस, ठीक है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक matrices। जैसे in the last lecture we had discussed about the transpose of any matrix. How can you find the transpose of any matrix? Just row column interchange, just interchange the row columns, then you will get the transpose of any given matrix. Okay, so by using the concept of transpose of the matrix, these two concepts can be discussed, okay, or can be evolved. So skew मतलब symmetric matrix कब होगा? If A equals to Aij m cross n is any matrix, then A transpose क्या होगा? Aij था, ये Ji हो जाएगा, and this order will be changed also, because m क्या था? That was the row, n क्या था? That was the column. Now interchanged, that means n will be the row, m will be the column. Okay, so A transpose equals to this. Now A transpose equals to A, अगर ये satisfied, then symmetric, then A is symmetric matrix. ठीक है, अगर A ट्रांसपोज का आंसर A के साथ इक्वल हो गया, रो कॉलम इंटरचेंज करने के बाद भी, ओके, इंस्टेड ऑफ जस्ट इंटरचेंजिंग द रो कॉलम अरेंजमेंट्स, if you are getting the same matrix back, then that will be the given matrix will be the symmetric matrix. Similarly, A transpose equals to minus A. If you are getting this concept, that means if you are interchanging the row column, then one minus sign will be introduced just before of A matrix. So that will be skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. ठीक है,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक क्वेश्चन लिखो, इफ ए इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स गिवन है, इफ ए इक्वल्स टू -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 और बी मैट्रिक्स है -4 1 -5 -4 1 -5 then 1 2 0 and then 1 3 1। तुम्हें वेरीफाई करना है, ठीक है, वेरीफाई दैट a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये तुम्हें वेरीफाई करना है। सो इफ यू वांट टू वेरीफाई दिस थिंग्स, एट फर्स्ट यू नीड टू फाइंड द a प्लस बी मैट्रिक्स हियर। ये तो पहले लिखोगे गिवन, लिख के a इक्वल्स टू दिस, b इक्वल्स टू दिस लिखोगे, ठीक है। a प्लस बी अगर यहां पर मैं निकालूं -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 देन प्लस -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अगर दोनों को मैं ऐड करूं, ऐड करने से क्या होगा, दिस -5 2 1 3 3 -5 -2 5 1 6 7 2 9 9 0 9, ठीक है। -2 1 that is -1 1 3 4 1 1 2। तो इट इज द a प्लस बी मैट्रिक्स। नाउ a प्लस बी का मैट्रिक्स होल ट्रांसपोज क्या होगा, जस्ट रो कॉलम इंटरचेंज। दैट मीन्स ये जो है ना फर्स्ट रो है, नाउ दैट विल बी चेंज टू फर्स्ट कॉलम -5 3 -2। ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम हो जाएगा जस्ट लाइक दैट। ये थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम हो जाएगा जस्ट लाइक दैट। इट इज द a प्लस बी होल ट्रांसपोज। सो इट इज द लेफ्ट हैंड साइड, सो इट इज द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का वैल्यू निकाल के देखो कितना होता है, ठीक है। राइट हैंड साइड दैट मीन्स ये a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ये बहुत आता है ये सब क्वेश्चंस, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो a ट्रांसपोज क्या होगा, a मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 ट्रांसपोज, और b क्या है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, इसका होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो क्या होगा, रो कॉलम इंटरचेंज कर दो। ये फर्स्ट रो है ना, ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा अभी, ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम हो जाएगा, और ये थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम हो जाएगा। सेम -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 प्लस करो, -1 -4 -5 5 1 6 -2 1 -1 2 1 3 7 2 9 1 3 4 3 -5 -2 9 0 9 1 1 2 are the same. I mean to say the left hand side and the right hand side matrices. -5 this 6 -1 2 9 4 yes they are same. So here left hand side equals to right hand side, verified, they are same. Okay, so you need to verify these things and we have verified. Okay, ठीक है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं।